Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan. You guys are my YouTube family. I hope you must be watching all my videos, and I have given you different kind of videos related to English language. So basically, as you are very familiar about me, that I am English language instructor, and I have given you different kind of lecture regarding English language. So today I have brought to you another topic. Even before, we have discussed about parts of speech, and we have concluded rest of the parts of speech, and at the same time different kind of other things we have discussed, and you exactly have learned so many things. So today I would like to share with you something different. It's a very nice topic, and if you want to beautify, if you want to make your conversation more beautiful, so you have to keep in touch with such things which exactly are very important in English language. So for that matter, I would like to share with you some of the very new topic, some of the very variety topic. So today I have brought to you a very essential topic. I hope you are going to learn about it, and not only you are going to learn, but also you are going to utilize these things in your daily conversation, because the conversation is the most important thing. People who are listening you, I am talking about those who are listening English, so they are good listener, so always they give priority to such people who are what should I say, speaking something different, some beautiful things they are speaking in their daily conversation. So I want you that you need to speak such things, so as people get positive influence from your personality. So I think it's going to be very nice. It's gonna be very handy for rest of you people who are listening and who are making conversation on a daily basis. So today we have to discuss about the proverb. What are the proverb? Basically, you know very well about it, that some of the people talk about that cut your goat according to your cloth, अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाओ. यानी ऐसे वर्ड जो कहावतें भी होती हैं, और कहने का मकसद ये है स्पेशल सेंटेंस भी जो है आपकी इंग्लिश को बेहतर करते हैं. प्रोवर्ब हो गए, स्पेशल सेंटेंस हो गए, तो ये चीज़ें आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर कर देती हैं. तो आज मैं इसके बारे में ही डिस्कस करूंगा कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. और इसमें बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा ही आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को बेहतर बना देते हैं. डू यू वांट टू मेक योर कॉन्वर्सेशन मोर बेटर? क्या आप बनाना चाहते हैं उसको और ज़्यादा अच्छा? अगर वाकई में आप बनाना चाहते हैं, इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, इफ़ यू आर वेरी ईगर अबाउट इट, तो आपको इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि इन डेज टू कम इट्स गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर यू पीपल, और आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है. तो जैसे कि मैंने बताया आपको, कट योर गोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ये इसका मतलब है अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाओ. इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बोलते हैं लोग सोने पर सुहागा. भाई ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर तुम ये कर दो तो ऐसे हो जाएगा. तो ये सोने पे सुहागा अगर हम बोल रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इसको ऐसे बोला जाएगा, इट एड्स आइस टू केक. इट एड्स, ADDS, इट एड्स आइस टू केक. तो इसका मतलब हो गया सोने पे सुहागा. इसी तरह अगर मैं ये बोलूँ कि मैं एक अच्छा तालिब इल्म हूँ, अगर मैं एक अच्छा तालिब इल्म हूँ, तो हम बोलते हैं आई एम द बेस्ट स्टूडेंट. बहुत आसान है ये, तो लोग समझ जाएंगे. इसी तरह अगर देखा जाए तो इसको अगर हम बोलें इस तरह से, आई एम सेकंड टू नन, आई एम सेकंड टू नन, कि मैं तो बेस्ट हूँ. आई एम सेकंड टू नन अपार्ट फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, मैं तो बेस्ट हूँ तमाम तालिब इल्मों में. तो ये तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा. तो ये हट के हो जाएगा. जो चीज़ हट के होती है वो आपकी इंग्लिश को बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर कर देती है. अगर मैं बोलूँ इंग्लिश इज़ माई इंटरेस्ट, इंग्लिश इज़ माई इंटरेस्ट, इंग्लिश मेरी दिलचस्पी है, तो लोग समझ जाएंगे कि भाई दिलचस्पी है. लेकिन अगर मैं बोलूँ इंग्लिश इज़ माई कप ऑफ टी, तो लोग कहेंगे कि वाकई में ये तो डिफरेंट बोल रहा है. तो कहने का मकसद ये है, इंग्लिश इज़ माई कप ऑफ टी का मतलब है इंग्लिश इज़ माई इंटरेस्ट.
तो ये छोटे छोटे से जो कहने का मकसद ये है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम प्रोवर्ब और स्पेशल सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें निखार आ जाता है। तो अपनी इंग्लिश में निखार लाने के लिए ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी भी है। और इसको हमें चाहिए कि हम अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करें ताकि हमारी कॉन्वर्सेशन दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती चली जाए और हम जो है वो अपने आप को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएं। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत से ऐसे वर्ड हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम रोज़ाना की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं, लेकिन प्रोवर्ब का इस्तेमाल और स्पेशल सेंटेंस जो हम यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल हमारी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ऐसी इंग्लिश बना देता है जिसमें आपको क्वालिटी और वैरायटी नज़र आती है। तो इसका इस्तेमाल करना कभी ना भूलें। और कहने का मकसद यही है मेरा कि आप लोग इसको रोज़ाना की बुनियाद पर यूज़ करें। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इनके बारे में बताया कि ये सेंटेंसेस आपको बहुत ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। जैसे बहुत इजी सी चीज़ें हैं, इसमें ख़ास तौर से स्कूल स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उनके सिलेबस में भी आ रहे होते हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सेंटेंस है जो हम अक्सर जो है वो बोलते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इसका इस्तेमाल करें, तो इससे आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा, एक अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा दूसरे की पर्सनालिटी पे, आपकी पर्सनालिटी का। तो इसका इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह ये तो इतने ज़्यादा तादाद में हैं कि आप इसको कहने का मकसद ये है कि हर मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल जो है वो करना बहुत ही फ़ायदेमंद है और इंग्लिश लैंग्वेज में ख़ास तौर से इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसीलिए मैंने सिर्फ जो है वो इसको डिस्कस किया है आज, लेकिन जब मैं राइटिंग क्लासेस आपकी इंशाल्लाह शुरू करूँगा तो मैं इंशाल्लाह राइटिंग क्लासेस में आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से भी डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत शॉर्ट होती हैं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं शॉर्ट वीडियो में जो भी हो सके आपको एक मैसेज कन्वे कर दूँ। तो आज मैंने प्रोवर्ब और स्पेशल सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो बयान किया है, उसके बारे में बताया है। जैसे कि एक और प्रोवर्ब है, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बोला जाता है और लोगों को बोलना भी चाहिए। अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूज़र, अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूज़र। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये जो वर्ड है चोर की दाढ़ी में तिनका, अब चोर चोरी करने आया, यकीनन वो कोई ना कोई ऐसा राज जो है वो शो कर देगा अगले के सामने कि उसकी दाढ़ी में तिनका है, तो इसका मतलब है यही चोर है, ये वहाँ गया था, इसने चोरी की थी। तो अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूज़र, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी पकड़ा जाता है जो बंदा, उसके सामने ये प्रोवर्ब जो है वो बोला जा सकता है। तो ये भी एक प्रोवर्ब है जो मैंने आपको अभी बताया कि अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूज़र, अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूज़र। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रोवर्ब है। इसी तरह बहुत सारे मशहूर जो है वो प्रोवर्ब हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। यूनिटी इज़ द बेस्ट क्वालिटी, इत्तेहाद में बरकत है। यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ माशरे में अगर हम इसका इस्तेमाल करें, इसको हम अपनी डेली रूटीन में जो है वो अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर भी इस्तेमाल करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये आपकी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर कर देता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड। अब ये देखें, दोस्त वही है जो मौके पर दोस्त के काम आए, जो वक्त पर यानी मौके पर या वक्त पर दोस्त के काम आए। अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड। तो ये सब प्रोवर्ब हैं, आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो इसका इस्तेमाल करें अपनी कॉन्वर्सेशन में, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी मेरी वीडियोस आप देखते हैं उसको आगे जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप मुझे कमेंट्स भी दे सकते हैं अपने
जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में रिलेटेड टू माय वीडियो कि इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है आप स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें क्या जो है वो बेहतरी के इक़दाम किए जा सकते हैं। तो लिहाजा मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मुझे देखते हैं, मुझे वॉच करते हैं। और इसके साथ ही मैं आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो राइट हेयर। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।